Hello students, today we will discuss depreciation, chapter number 7. Under this depreciation topic, we discuss methods of depreciations. Nearby, 10 method of depreciations. Fixed installment method, reducing balance method, annuity method, depreciation fund method, another word called sinking fund method, insurance policy method of depreciation, revaluation method of depreciation, machine hour rate of depreciation, mileage method of depreciation, depletion unit method, component interest method. Nearby 10 methods are depreciation methods. Out of above methods, only 2 methods, fixed installment method and diminishing balance method, only 2 methods, only first 2 methods have been prescribed in syllabus for 11 commerce. Only 11 commerce, only 2 methods are prescribed. First 2 methods, fixed installment method and diminishing balance method. First 2 methods. Hence, only 2 methods are explained into this chapter, depreciations. But we discussed about the 10 methods. Meaning of annuity methods, meaning of depreciation fund methods क्या होती है, meaning of insurance policy methods क्या होती है, revaluation method of depreciations क्या होती है, machine hour rate methods of depreciations क्या होती है, which is the meaning of that, when which types of business have maintained their records into that follow the rules of that depreciations, mileage methods क्या होती है, depletion unit method क्या होती है, component interest method of depreciation. Nearby, that is the method of depreciation. ये depreciation क्या है? Methods of depreciation. ये depreciation की method है. There are 10 methods. ये 10 methods आपके 10 methods of depreciation. First, we describe in our syllabus. First 2 method in our 11 commerce. 11 commerce को 2 method के ऊपर आपको प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं. Fixed installment method. Fixed installment को कहा जाता है स्ट्रेंथ लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. इसके 3 नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है फर्स्ट मेथड को. फर्स्ट मेथड के 3 नाम क्या है? स्ट्रेंथ लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. सेकंड मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसे अनदर वर्ड में कहा जाए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या उसे कहा जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. एंड सेकंड जो मेथड है उसको 3 नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है प्रॉब्लम. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ये सेकंड मेथड को. फर्स्ट मेथड को 3 नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है. फर्स्ट फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेंथ लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. फर्स्ट मेथड को 3 नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है. और सेकंड मेथड जो आपकी सेकंड मेथड को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यूएशन मेथड, ये 3 नाम से आइडेंटिफाई होते हैं. ये 2 जो मेथड्स आपके फर्स्ट 2 मेथड्स आर प्रेस्क्राइब्ड इन आवर 11th कॉमर्स सिलेबस. हेंस in the syllabus 11 commerce, hence only 2 these methods are explained below. इसलिए 2 एक मेथड के बारे में इस पार्ट 2 में आपको डिस्कस करना. बट वी सी द मीनिंग ऑफ एन्युटी मेथड, डिप्रिसिएशन फंड उसे कहा जाता है सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस पॉलिसी से ये मेथड से किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, मशीन और रेट मेथड, revaluation method of depreciation, mileage method of depreciation, depletion unit method of depreciations, component interest method of depreciations. यानी 10 टाइप से डिप्रिसिएशन के, उस 10 टाइप में we calculate the amount of depreciation on fixed assets. फिक्स एसेट के ऊपर आपको ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किए जाते हैं. So the first 2 methods we describe now into this और सिलेबस. फर्स्ट 2 मेथड्स के बारे में आपको चर्चा करना है कॉमर्स में, 11th कॉमर्स के अंदर. अनदर जो 8 मेथड्स आपके रिमेनिंग 8 मेथड्स 3 से लेकर 10 तक की, वी सी द स्टेप बाय स्टेप इन नेक्स्ट पॉइंट. पहले देखते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है. द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स, डिप्रिसिएशन रेट क्या रहता है आपका, फिर फिक्स रहता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर. वी सी द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड फर्स्ट. Into this fixed installment method, we discuss the first method first.
पहले एक एक मेथड देखते हैं पूरा डिप्रेशन मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होती है, वी सी डिटेल। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ये जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, दिस इज द फर्स्ट मेथड। ये मेथड फर्स्ट आपके फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, उसे FIM यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोल के आइडेंटिफाई किया जाता है, या SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। ये डिप्रिसिएशन की फर्स्ट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। ये फर्स्ट मेथड है आपकी, इसे फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड तीन नाम से जाना जाता है, FIM फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, SLM ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। इस फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो होता है एवरी ईयर फिक्स आपका होता है। इनटू दिस मेथड वी सी द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, इसमें जो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन आपका होता है, इनटू दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन to be write off every year under the method of is equal। यानी इस मेथड के अंदर फर्स्ट मेथड जो आपकी है, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो आपका होता है, द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन टू बी राइट ऑफ एवरी ईयर अंडर दिस मेथड इज इक्वल। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन एवरी ईयर क्या होता है यहाँ पे, इस मेथड के अंदर आपका इक्वल होता है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन और इक्वल इनटू दिस मेथड। इसमें फर्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल, इक्वल आपका रहता है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो आप राइट ऑफ करते हैं, इसमें रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल इनटू दिस फर्स्ट मेथड। उसको फर्स्ट मेथड को आइडेंटिफाई किया था। इनटू दिस फर्स्ट मेथड वी सी अनदर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट मेथड। इनटू दिस फर्स्ट मेथड, इससे कहा जाता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलकर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। Into this method, the amount is arrived at by deducting the estimated scrap value from the original cost and dividing the result by the number of years। इसका जो फॉर्मूला आपका है, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर लाइफ ऑफ एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट्स, जो आपको फॉर्मूला फर्स्ट मेथड का जो आपको फॉर्मूला है। द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज टू बी राइट ऑफ एवरी ईयर अंडर दिस मेथड इज इक्वल। रेट ऑफ अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल फॉर ईच एंड एवरी ईयर्स। द अमाउंट इज अराइव्ड एट बाय द डिडक्टिंग द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट एंड dividing the result by number of years of its useful life. Every year, this method, the same amount so arrived at its change as depreciations. Into this, in short, into this straight line method, the rate of depreciation is fixed for every year. The amount of depreciation amount is fixed for every year into this method. इसलिए इसलिए कहा जाता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। उसका इंस्टॉलमेंट हर साल आपका फिक्स होता है। उसके ऊपर एग्जांपल आप देखेंगे, बाद में आपको समझ आएगा हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इनटू दिस फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ये कांस्टेंट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज एवरी ईयर इनटू दिस मेथड, सो दैट द एसेट विल बी reduced to its scrap value at the end of useful life। इस तरह आपको ये मेथड से कैलकुलेशन किया था। इसका जो फॉर्मूला उसका है, हम इसे अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट। इसमें जो फॉर्मूला आपका है, इसमें अप्लाइंग द फॉर्मूला कॉस्ट डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेट लाइफ ऑफ मशीन। एस्टिमेट लाइफ ऑफ जो आपका मशीन से या जो आपके एसेट्स है, एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट्स आप बोल सकते हैं, या एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो होती है आपकी
ईयर्स में होती है, नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स आपको इसको डिवाइड करते हैं, यानी डिप्रीशिएशन हाउ टू कैलकुलेट डिप्रीशिएशन इनटू दिस फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कॉस्ट प्राइस आपको दिया थी, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ यूजफुल लाइफ ऑफ आवर एसेट्स, लाइफ ऑफ एसेट्स। वी apply the formula of fixed इंस्टॉलमेंट। The amount of depreciation is equal from each year, same for each year into this method. सेकेंड मेथड जो आपके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसे डीबीएम कहा जाता है। सेकेंड मेथड से जो आप कैलकुलेट करते हैं डीबीएम, डीबीएम से सेकेंड मेथड सेकेंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसे कहा जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या उसे कहा जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एंड इज फ्रॉम डीबीएम, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डी फॉर डिमिनिशिंग, बी फॉर बैलेंस, एम फॉर मेथड, आर फॉर रिड्यूसिंग, बी फॉर बैलेंस मेथड, और WDV रिटर्न डाउन वैल्यूएशन मेथड। दैट इज द थ्री नेम ऑफ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड को थ्री नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये बैलेंस मेथड है, चार्ज ऑफ डिप्रीशिएशन इन बैलेंस अमाउंट एवरी ईयर, यानी जो बैलेंस आपका कैरी डाउन होता है उस बैलेंस जो ओपनिंग करते हैं आप नेक्स्ट ईयर को, ओपनिंग को आपको जो बैलेंस आप पाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, उस बैलेंस ब्रॉट डाउन के अमाउंट के ऊपर आपको डिप्रीशिएशन कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए उसे कहा जाता है बैलेंस मेथड। We see the example of that diminishing balance method. We see the curve, we see the graph of diminishing balance method है, fixed installment मेथड का ग्राफ देखेंगे। ग्राफ पर आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट ऑफ डिप्रीशिएशन कांस्टेंट फॉर एवरी ईयर, एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अमाउंट ऑफ जो डिप्रीशिएशन है चेंजेस इन एवरी ईयर, वो आपको हर साल बैलेंस के ऊपर आपको चेंजेस होते रहते हैं। कैलकुलेट द सेपरेट अमाउंट ऑफ एवरी ओपनिंग बैलेंस जो आपका आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसी के ऊपर आपको डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करना होता है। इनटू दिस सेकंड मेथड वी डिस्कस द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसे कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसे कहा जाता है अनदर वर्ड्स के अंदर। वी डिस्कस नाउ इनटू दिस सेकंड मेथड। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर डिप्रीशिएशन इज चार्ज एट द फिक्स्ड परसेंटेज नॉट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर एज इन द फर्स्ट method, but on the depreciated value on reducing balance method, balancing every year, reducing balance every year, every year आपका बैलेंस कम होती जाता है इस बैलेंस के अंदर, इस रिड्यूसिंग बैलेंस के मेथड के अंदर। सपोज मशीन इज परचेस, जब मशीन आप परचेस करते हैं फॉर रुपीज 1 लाख रुपीज का अपने मर्चेंट से परचेस किया, उसके ऊपर आप 10% डिप्रीशिएशन, रेट ऑफ डिप्रीशिएशन आपका 10% है, तो उसका जो 1 लाख के ऊपर जो 10,000 आपका डिप्रीशिएशन आ रहा है, वो माइनस करने के बाद जो बैलेंस रहता है 90,000 रुपीज, वो 90,000 रुपीज आप ओपनिंग बैलेंस आप ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड में, और उसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है उस रिमेनिंग अमाउंट जो आपका 90,000 है, 90,000 डिप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो 90,000 आपका बैलेंस रहता है, उस 90,000 के ऊपर अगेन वी शुड कैलकुलेट द 10% अमाउंट ऑफ डिप्रीशिएशन एज सेकंड मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस। इसलिए इसे बैलेंसिंग मेथड कहा जाता है। बैलेंस के ऊपर जो रिमेनिंग बैलेंस आपका होता है बैलेंस कैरी डाउन, उस बैलेंस के ऊपर आपको नेक्स्ट ईयर जब ब्रॉट डाउन करते हैं उसी के ऊपर आपको बैलेंस अगेन डिप्रीशिएशन रेट से कैलकुलेट करना पड़ता है। बैलेंस के ऊपर अगेन आप कैलकुलेट द रेट ऑफ डिप्रीशिएशन, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड के अंदर जो कैलकुलेशन करता है, अंडर दिस मेथड डिप्रीशिएशन इज चार्ज एट फर्स्ट परसेंटेज नॉट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर as in the first method, but on the depreciated value on reducing balance every year. Value reducing balance every year, which changes the balance for every year. It is called balancing method. इस मेथड आप कैलकुलेट करते हैं। थर्ड मेथड जो आपकी इसमें एन्युटी मेथड क्या होती है, वार्षिक उसे पद्धति उसे कहा जाता है एन्युटी में वार्षिक। थर्ड मेथड है आपकी एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन। आपको सिलेबस के अंदर नहीं है, तो 11 के अंदर एन्युटी मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन। एन्युटी मेथड क्या होती है, वी सी द मीनिंग ऑफ एन्युटी मेथड।
वार्षिक हफ्ता पद्धति से कहा जाता है, वार्षिक पद्धति उसे कहते हैं. इनटू दिस एन्युटी मेथड वी डिस्कस द मेथड्स ऑफ एन्युटी. इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं. वार्षिक जो मेथड उसका अर्थ होता है, when the asset is purchased for use in business, the capital is locked up in the assets which would have earned interest. Into this annuity methods, earn interest. Had it been invested outside the business, the annuity method takes this fact into consideration, which the first two methods ignore. First two methods is ignored when we calculate when you adopt the method of depreciation, annuity methods in calculating of amount of depreciation. जब annuity method से depreciation calculate करते हैं तो first two methods आपको वहां पे ignore करना पड़ती है. We calculate the annuity methods there. So the annuity methods takes this fact into consideration. The two methods, first two methods जो आपके हैं, fixed installment method and diminishing balance method, first two methods are ignored. Under this method, the increase in changes या increase in charge आप चार्ज करते हैं to the assets account at a fixed rate on the value of assets in the beginning of the year. Value of assets of the beginning of the year जो होता है उसके ऊपर आप calculations करते हैं. Beginning of the year, the amount of interest is debited to assets account and credited to interest accounts. The amount of interest debited to assets account and credited to interest account. यहाँ पे आपको एन्युटी मेथड में कैलकुलेट करते हो तो आपको ट्रांसफर करना पड़ता है. द मेथड इज कन्वीनियंट फॉर चेंजिंग डिप्रिसिएशन ऑन कॉस्टली लीज इन्वॉल्विंग, जो लीज होते हैं आपके लीज इन्वॉल्विंग large sum of money. This method are useful for large sum of money when we calculate the depreciation amount into this method. When we adopt the annuity methods, this method are useful for the amount of interest is debited to assets account and credited to interest account. This method is convenient for charging depreciation on costly lease involving the large sum of money. Large sum of money are invested into the business. We adopt the annuity methods. We calculate our calculations into these methods. Third, इसके next method जो आपकी depreciation fund method या sinking fund method. Fourth method depreciation जो आपका होता है depreciation fund उसे कहा जाता है. और सिंकिंग फंड मेथड उसे सिंकिंग फंड मेथड से नाम हो जाता है, डिप्रिसिएशन फंड मेथड या सिंकिंग फंड मेथड. इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. फर्स्ट टू मेथड्स आर इन आवर सिलेबस बट वी डिस्कस इन व्हाट इज डिप्रिसिएशन फंड मेथड और सिंकिंग फंड मेथड्स क्या होती है इसके बारे में इन शॉर्ट थोड़ा डिस्कस करते हैं. Into the sinking fund methods जो आपकी होती है sinking fund methods, into this method of depreciation fund is used to make sure ready to cash is available when the new assets is to be purchased at the end of the year and end of the use of life of the old assets. Under this method, the amount transferred to depreciation fund out of profit is written down from the balance and invested in readily reliable securities. At the time of the replacement of assets, such method जो आपके depreciation fund method की replacement of securities are sold off and the amount realized is utilized for purchasing new assets. The investment made year after you will earn the interest and hence the amount to be ये amount आपका होता है amount to be
set aside for depreciations. The amount of depreciations to be transferred to this fund every year. The amount of depreciation fund transferred to every year for next fund के लिए आप ट्रांसफर उसे करते हैं. Be such of will amount as along with the interest earned a fixed sum required for replacement at the end of the particular period. So this depreciation fund amount will be calculated into this depreciation funds. When you sold some assets, we are updating the depreciation methods. Next method आपकी insurance policy method. Insurance policy method जो आपकी है, which is the insurance policy method. Fifth, insurance policy method. Insurance policy method. इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, इंडोमेंट पॉलिसी जो आपकी होती है इसमें, इट इज जो प्रीमियम आप पेड करते हैं इस इंश्योरेंस पॉलिसी में, इंश्योरेंस जो आप कैरी करते हैं, तो इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड जो आपकी होती है, इनटू दिस इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड वी सी द डिटेल्स अबाउट दैट पॉलिसी मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन एंड एंडोमेंट पॉलिसी इज टेकन आउट फॉर रिक्वायरमेंट अमाउंट एंड फिक्स्ड सम कॉल्ड प्रीमियम इज पेड एवरी ईयर. You pay the amount of policy premium every year. You adopt these methods of insurance policy methods. You adopted the calculation of depreciations. The insurance company, they paid every year to the insurance company. The insurance company will pay the assurer sum after the fixed period, with the help of which, and after the fixed period, you should be get the amount of premium, get the amount of that policy. It is the insurance policy method. New assets can be purchased. The amount of premium is nothing but promise for depreciation. Yeah, but the provision आप उसका किया जाता है. He assures that customers to provision for depreciations, and hence the amount of premium is debited to PL account and credited to insurance reserve account. The amount of premium transferred to PL accounts and second effect will be credited to depreciation insurance reserve account. Insurance reserve account उसका हम reserve. This is called insurance policy method. उसके बाद में जो मेथड्स आपके revaluation methods. Next मेथड आपकी revaluation method. Number 6, revaluation method. Revaluation method of depreciation. Method of depreciation. Revaluation method of depreciation. Revaluation method of depreciation जो आपके है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. The revaluation of method of depreciation. In this method we see the revaluation of our assets. जो आपके assets होती है उसका revaluation यहाँ पे आपका होता है. Just like a livestock जो आपका होता है, loose tools, packages and patents, that is your assets. The revaluation methods, उसका revaluation आपको, where it is not a possible to estimate the life of an assets. When it is not possible to estimate the life of assets, the revaluation method is used. Where it is not possible to estimate the life of assets, we adopt the revaluation method of depreciation. For example, livestock है आपके पास, loose tools है, patents है. Into this example we see when it is not possible to estimate the life of assets. Livestock जो आपका होता है, जो animals आपके होते हैं, उसकी estimate life आप assume नहीं कर सकते. In the situation with revaluation methods of depreciation we adopted into these methods. When it is not possible to estimate the life of assets, the revaluation methods is used. For example, livestock, उसके बाद आप बोल सकते हैं loose tools, packages, patents. The assets in questions is valued by a person having intimate knowledge of such an assets at end of the year, and book value in beginning is compared with it.
ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग बिगनिंग का जो आपका बैलेंस है और एंड ऑफ द ईयर का जो आपका बैलेंस आपका होता है, द बुक वैल्यू जो आपकी होती है, बुक वैल्यू इज द बिगिनिंग ऑफ द, वी शुड कंबाइन देम एंड वी शुड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ adopt the method of revaluation methods, we will depreciate calculate now into this method. इसके बाद में मेथड है आपकी डिप्लेशन यूनिट मेथड। डिप्लेशन, ये डिप्लेशन यूनिट मेथड क्या होती है, इसके बारे में डिप्लेशन यूनिट मेथड, डिप्लेशन यूनिट मेथड। डिप्लेशन यूनिट मेथड में हाउ टू कैलकुलेट द मेथड्स ऑफ डिप्लेशन मेथड्स, व्हिच इज द मीनिंग ऑफ डिप्लेशंस। डिप्लेशंस का मीनिंग क्या होता है? इन अ केस ऑफ वेस्टिंग एसेट लाइक, इन द केस ऑफ वेस्टिंग एसेट लाइक माइन, ऑयल, वेल्स, it is the depreciation is charged according to this method. Depletion methods are used in the case of wasting assets like a oil, like a mines जो आपके होता है खान उसे बोलते हैं माइंस, उसके बाद में ऑयल और वेल्स। The depreciation is charged according to this method. The total output during the lifetime, जो लाइफ टाइम आपका होता है उस माइन का, उस ऑयल का, उस वेल का, लाइफ टाइम ऑफ द माइन इज एस्टिमेटेड and the amount paid for the mine is divided by total output, so used to give the rate per unit of ton or liters। ऑयल रहता है लीटर्स में, माइन रहता है टन में, आप कैलकुलेट करते हैं टन एंड लीटर्स on the basis of this rate. The depreciation is to be charged during the each year on the purchases of the year. Each year we should calculate माइन का अब जो कैलकुलेशन आप करेंगे और लीटर से आप ऑयल का कैलकुलेशन आप करते हैं, टन माइन से आप टन से कैलकुलेशन करके और ऑयल का कैलकुलेशन करते हैं मीटर, लीटर से आप कैलकुलेशन करें। फॉर एग्जाम्पल वी सी माइन इज एस्टिमेटेड टू yield 1 lakh यूनिट्स। 1 lakh यूनिट्स माइन से आप निकालते हैं, उसको टन में आपको कन्वर्ट आप करना पड़ता है, and 1 lakh tons of coil and ₹4 lakh are paid for mine। 4 लाख आपने पेड किया, 1 लाख टन आपने निकाले, 4 लाख रुपए उसका अमाउंट आपने पेड किए। Then the depreciation per ton of productions is 40 पैसा पर ईयर टन आपका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एंड जो टन से कैलकुलेशन करते हैं, विच वी अडॉप्ट दिस मेथड ऑफ डिप्लेशन मेथड। यानी माइल का आपका बिजनेस है या ऑयल का आपका बिजनेस है, जब उसका अमाउंट को आप कन्वर्ट करते हैं तो जो रुपीज आपका आता है पैसे में, जो कैलकुलेशन आपका है, दैट इज द कैलकुलेशन वी शुड यूज अडॉप्ट द मेथड ऑफ दैट एग्जांपल्स। उस वक्त आप क्या करते हैं, डिप्लेशन मेथड से वैल्यू आप कैलकुलेट करते रहते हैं। सो द वी सी द एग्जांपल ऑफ माइन। एक माइन का आपने एग्जांपल यहाँ पे लिए हुए। फॉर माइन इज एस्टिमेटेड, एक अंदाज आप पकड़ लीजिए, माइन इज एस्टिमेटेड टू yield, उसका उत्पादन उसमें होता है 1 लाख टन का आपका उत्पादन होता है। 1 लाख टन ऑफ कोल से का आपका उत्पादन होता है, कोल का 1 लाख का। एंड ₹4 लाख जो आपका है आर पेड फॉर द माइन, 4 लाख आपने उसको पेड किया। तो हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, वी एडॉप्टेड दिस मेथड डिप्लेशन यूनिट मेथड से। जब आप कैलकुलेशन करते हैं माइन का और ऑयल का, तो आपको दोनों चीज आपको ध्यान में रखना पड़ती है। माइन में से आप जो कोल निकालते हैं, कोलसा जो निकालते हैं, 1 लाख टन आपने कोलसा निकाला, उसका रेट 44 लाख रुपीज आपका है। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ दैट unit of methods we adopted the depreciation methods in that situations. So paid for the mine, 4 lakh rupees paid for the mine, then the depreciation per ton of production is 4 lakh divided by 1 lakh is equal to 40 पैसा। 4 लाख रुपए रुपीज डिवाइडेड बाय टन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अमाउंट डिवाइडेड बाय जो टन आपने जो माइन में से जो 1 लाख टन आपने कोल निकाले उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय
टन 1 लाख इज इक्वल टू 40 पैसा पर यूनिट आपका कैलकुलेशन आपका वहां पे आएगा. दैट इज द पैसा पर टन विच वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ माइन. माइन में से जो आप कैलकुलेशन आप करते हैं डिप्रीशिएशन मेथड में वी अडॉप्टेड दिस मेथड्स. माइन इज एस्टिमेटेड टू यील्ड 1 लाख. माइन में से जो आपका माइन है, माइन में से आप एस्टिमेटेड 1 लाख टन आप कोल निकालते हो उसमें से, और उसका वैल्यू रुपीज इज गोइंग टू 4 लाख. तो कैलकुलेशंस करते वक्त जो डिप्रीशिएशन वी शुड एडॉप्ट द मेथड ऑफ डिप्रीशिएशंस, वी सी द अमाउंट यूज द फॉर्मूला. जो आप फॉर्मूला आप यूज करेंगे, अमाउंट ऑफ माइन डिवाइडेड बाय टन ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टन्स. जो आपका टन है वो आपको ऐसे करेंगे, टन कितना आपका 1 लाख टन डिवाइड बाय 4 लाख, यानी 40 पैसा जो आपका आ रहा है 0.40 पैसा इज आवर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रीशिएशन रेट. इज द पैसा पर टन, 40 पैसा पर टन, 40 पैसा पर टन आपका आएगा. 40 पैसा पर टन, 40 पैसा पर टन आपका इसका कैलकुलेशन आपका आएगा. वेन यू अडॉप्टेड द एग्जांपल ऑफ माइन, इसमें जब कोल कैलकुलेट करते हैं या ऑयल का आपका बिजनेस है, दैट इज एग्जांपल ऑफ बिजनेस. आपका माइन का बिजनेस अडॉप्शन द डिप्लीशन यूनिट मेथड. यूनिट का आपका काफी कैलकुलेशन करना पड़ता है. इसके बाद में एक नंबर का जो आपका मेथड्स आपका जो डिप्लीशन के बाद में मशीन आवर रेट मेथड. मशीन आवर रेट मेथड. मशीन आवर रेट मेथड जो आपकी है डिप्रीशिएशन की, मशीन आवर रेट मेथड उसे MHR बोलते हैं. MHR मशीन आवर रेट मेथड, MHRM. मशीन आवर रेट मेथड से जब आप कैलकुलेट करते हैं, व्हेन यू अडॉप्ट दिस मेथड, इस मेथड को कब आप अडॉप्ट करते हैं, दिस मेथड इज अडॉप्टेड इनटू दिस मेथड. मशीन आवर रेट मेथड जो आपकी होती है, अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर जो कैलकुलेशन करते हैं मशीन आवर रेट के अंदर, अंडर दिस मेथड द लाइफ ऑफ मशीन इज एस्टिमेटेड द टर्म ऑफ इफेक्टिव वर्किंग आवर्स. इफेक्टिव वर्किंग आवर्स से उसका कैलकुलेशन किया है. द लाइफ ऑफ मशीन्स एंड इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, ये दो चीजों के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है मशीन आवर रेट विच वी अडॉप्ट द मेथड ऑफ मशीन आवर रेट्स. अंडर दिस मेथड द लाइफ ऑफ मशीन्स इज एस्टिमेटेड इन टर्म ऑफ इफेक्टिव वर्किंग आवर्स. इफेक्टिव वर्किंग आवर्स जो आपके होते हैं, द कॉस्ट ऑफ मशीन्स माइनस इट्स डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ आवर्स. दिस विल बी गिव अस hourly rate of depreciation. Hourly rate of depreciation will calculate estimate life of machines and estimate life divided by the hours of that machines, working hours of that machines. The depreciations to charge will depend upon the number of working hours. Number of working hours के ऊपर depreciation charge आपका depend करता है. So we should adopt the methods of machine hour rate method in that situation. The working life of machines and working hours of that machines. Machines के working hours कितने हैं, उसकी life कितने हैं, उससे we should calculate the machine hour rate methods of depreciation. For example, we see if the cost of machine is 50,000, cost of machine is 50,000 suppose. Cost of machine is 50,000 and if it is estimated due the services 1 lakh hours. कॉस्ट ऑफ मशीन आपका 50,000 है और एस्टिमेटेड उसका आवर्स है सपोज 1 लाख आवर्स सबके है. सपोज कॉस्ट ऑफ मशीन आपका है 50,000 आपका कॉस्ट ऑफ मशीन है. सपोज फॉर एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 50,000 एंड एस्टिमेट जो आपका सर्विसेज उसकी है 1 लाख आवर्स. उसके आवर्स है सर्विसेज आवर्स जो उसके आवर्स इज 1 लाख. कॉस्ट ऑफ मशीन आपका 50,000 है और उसका आवर्स आपके 1 लाख आवर्स आपके उसका रनिंग आपका है. विच यू अडॉप्ट द मशीन्स कैलकुलेशन हाउ टू कैलकुलेट द MHR rate of or estimate rate of that hours. Then the hourly rate in depreciation is 50 पैसा per hour. Estimated price कितना आपका 50,000 divided by 1 lakh
जो कैलकुलेशन आपका आता है दैट इज द 50 पैसा पर आवर विच वी कैलकुलेट एस्टिमेट लाइफ ऑफ मशीन, यानी 50,000 आपका कॉस्ट ऑफ मशीन आपका है, इज द 50 पैसा विच वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ दैट इज द 50 पैसा, वन हाफ मीन्स 50 पैसा, 50 पैसा विच वी कैलकुलेट विच adopt the that methods. This is the 9th method, number 9. Machine hour rates method में cost of machine and estimate life of hours which we calculate into this MHR methods. 9 जो आपका पॉइंट इसके अंदर है उसमें डिस्कस नाउ द 9 नंबर पॉइंट्स. माइलेज मेथड. माइलेज मेथड क्या होती है? माइलेज मेथड में हाउ टू कैलकुलेट द माइलेज मेथड. माइलेज मेथड, माइलेज हमेशा जो आपके व्हीकल्स होते हैं, कार जो आपके व्हीकल है, गाड़ी जो आपके पास होती है, उसे माइलेज मेथड से कैलकुलेशन वहां पे किया जाता है. दिस मेथड इज, जो मेथड आपके होते हैं माइलेज मेथड, जो आपके माइलेज मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, दिस मेथड इज यूजफुल इन चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स लाइक ए बस, कार, मोटरसाइकिल. माइलेज रिलेटेड टू बस, कार, मोटरसाइकिल. दिस मेथड आर यूजफुल टू दैट टाइप्स ऑफ बिजनेस. जो बिजनेस मोटरसाइकिल के बिजनेस है, ट्रक के बिजनेस है, उसके लिए यूजफुल अपने मेथड से. दिस मेथड इज यूजफुल टू चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स लाइक ए मोटर कार आपके पास है, बसेस आपके पास होती है और कार्स आपके पास होती है. एज द लाइफ ऑफ सच एसेट्स कैन बेटर मेजरमेंट आपकी जो है एज द टर्म ऑफ द माइल्स और किलोमीटर्स रन. The total mileage for the vehicles during its useful life is estimated and cost of assets is divided by mileage. This gives the rate of depreciation per mile. Depreciation per mile आपका पे कैलकुलेशन होता है. And estimate life of that vehicles, that mileages which we calculate the total mileages for this vehicle during the useful life. Total mileages during the vehicle of their लाइफ. उस लाइफ में कितने दिन तक वो आपने यूज किया, उसका जो लाइफ उसका है उसको डिवाइड करके माइलेज से आप कैलकुलेट करते हैं. विच यू अडॉप्ट द मेथड ऑफ माइलेज मेथड. तो जो मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस आपके होते हैं, एंड दिस मेथड इज यूजफुल फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स लाइक ए बस, कार्स एंड मोटरसाइकल्स विच वी कैलकुलेट द कंपेयरिंग द माइलेज एंड किलोमीटर्स एंड कैलकुलेट द एक्चुअल वर्किंग लाइफ ऑफ दैट एसेट्स. which you adopt this method. Last method जो आपकी component interest method जो आपकी इसमें calculate the component interest method. Component interest method. It is a 10th method. Component interest method. Component which we calculate the electricity जो आपकी होती है component जो interest method. एकत्रित जो interest आप calculate करते हैं component interest method of depreciation. Method of DEP. Component interest method of depreciations. This method are useful for electricity department जो आपका होता है. According to the Electricity Supply Act जो आपका है 1948 का, 1948 1948 में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आपका है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 जो आपका एक्ट है, ही अडॉप्ट दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो आपके होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है इस कंपोनेंट इंटरेस्ट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन को. सो जो कंपनी एक्ट आपका है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट आपका कभी का है 1948 का. द सप्लाई एक्ट के अनुसार द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज हैव टू अलाउ द सिस्टम ऑफ डिप्रिसिएशंस. Allow the system of depreciations. He adopt this method. He adopt this system. Component interest method system are adopted by electricity department. So the electric supply company जो आपकी होती है have to adopt this method of depreciations. According to this method, इस method के अनुसार, according to the methods we calculate the unit of electricity into this method. So according to this method, so much amount is charged as depreciation, which if transferred to depreciation every year will amount of
90%, transfer to amount to 90% of original cost of the assets at 4% component interest per annum. कंपोनेंट इंटरेस्ट पर एनम आप कैलकुलेट करते हैं इसमें 90% जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट जो आपका होता है 90% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स 90% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इसके ऊपर 4% कंपोनेंट इंटरेस्ट वहां पे चार्ज किया जाता है 4% कंपोनेंट इंटरेस्ट शुड बी चार्ज जो कंपनी एक्ट जो आपका है इन फोर्स ऑन 1948 का जो एक्ट है आपका कंपनी एक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो आपका है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट जो आपका है 1948 का 1948 का इस एक्ट अनुसार 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स की जो 90% ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसके ऊपर कंपोनेंट इंटरेस्ट आपको 4% वहां पे चार्ज किया जाता है सो हाउ टू कैलकुलेट द कंपोनेंट इंटरेस्ट द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई adopted this method to calculate the total component interest is charged to their assets. इसलिए 90% of the original cost of assets जो आपकी होती है उसी के ऊपर at 4% component interest per annum should be charged under this method, component interest method. इसलिए कंपनी एक्ट जो आपका है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 to electricity supply company have to adopt this system of depreciation. Supply company adopt this depreciation method जो उसने adopt की है adopt this system of depreciation. Electricity supply companies have to adopt this system of depreciation. According to this method, so much amount is charged as depreciation, which if transferred to depreciation every year will amount to 90% of the original cost of assets at 4% component interest per annum should be charged now that assets. ये आपकी 10 नंबर की जो आपकी कंपोनेंट दैट इज टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशन जो आपका है कंपोनेंट इंटरेस्ट which should be charged on that depreciation. This is the 10 method of depreciation. ये depreciation के आपके ये 10 methods आपके फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड उसे कहा जाता है एसएलएम मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से आइडेंटिफाई किया जाता है इक्वल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी फिक्स नाउ इनटू दिस फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड्स डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द बैलेंस मेथड व्हिच वी अडॉप्टेड द बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन आर चेंजेस इन एवरी ईयर फॉर बैलेंसिंग अमाउंट के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन पे चार्ज करना पड़ता है एन्युटी मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन फंड मेथड उसी को कहा जाता है सिंकिंग फंड मेथड इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड एंडोमेंट पॉलिसी आपकी जो होती है अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड कैलकुलेट इनटू दिस पॉलिसी मेथड्स इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड शुड बी अडॉप्टेड नाउ रिवैल्यूएशन ऑफ मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन यूनिट मेथड ये माइन का जो आपका बिजनेस आपका होता है कोल जब आप कैलकुलेट करते हैं विच में आपने द फॉर्मूला अमाउंट इंटू रेट मशीन और रेट मेथड्स mileage methods and component interest of methods of depreciation. That is the 10 types of depreciation we see into these lectures. We see the first methods which details fixed installment method. How to calculate the rate of depreciation. We see the graph. इस ग्राफ के द्वारा आप एक्सप्लेन करते हैं how to calculate the fixed installment method से कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है. We see the original cost method. We see the graph of two methods. ग्राफ एक ग्राफ देखते हैं एक आलेख देखते हैं उसका आलेख द्वारा फर्स्ट मेथड में सब देखते हैं दिस इज ये आपका एक्स एक्सेस है एक एक्सिस ये वाई एक्सिस ये आपका वाई एक्सिस है ये आपका एक्स ये पॉइंट 0 ये आपके ईयर्स 1 2 3 4 and amount of depreciation ये आपका amount of depreciation in rupees
अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रुपीज, ये आपके फर्स्ट मेथड से। सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड आपका है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को कहा जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहा जाता है, या अनदर वर्ड में से कहा जाता है रिटर्न डाउन वैल्यूएशन मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। and in short form DBM, RBM, तीन नाम से स्टार्टिंग किया गया था, DBM, RBM and WDV method. We see the graph into these two methods. This is most important methods in our ये आपका x एक्सिस है, x अक्ष आपका x 0 पॉइंट आपका y एक्सिस years, ये आपकी years है 1 2 3 4 5, ये आपका अमाउंट है, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। इसी तरह अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ये आपका है अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन DEP इन रुपीज, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इन रुपीज, ये रुपीज आपके। ईयर्स आप ड्रॉ करते, ईयर्स का कैलकुलेशन करते इनटू दिस मेथड, इफ यू अडॉप्ट दिस मेथड्स, इस मेथड से कैलकुलेशन करते। सपोज आपका ईयर से 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, अमाउंट है 2000 4000 6000 8000 10000, ये अमाउंट आपका 2000, ये आपका 4000 6000 8000 एंड 10000। ये सब यहाँ पे आपका अमाउंट लिखेंगे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, ये आपकी ईयर से पूरे 5 ईयर्स तक। अमाउंट आपका 2000 4000 2000 से प्लस करते हैं 6000 8000 एंड 10000, ये आपका रुपीज है, अमाउंट इन रुपीज, डिप्रिसिएशन रुपीज आपका, ये कॉलम एक्स एक्सिस आपका डिप्रिसिएशन रुपीज, ये आपका डिप्रिसिएशन रुपीज, डीईपी पर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का शॉर्ट की क्या आपका डीईपी फॉर डिप्रिसिएशन को इन शॉर्ट कहा जाता है डीईपी, डिप्रिसिएशन इन शॉर्ट की डीईपी इन रुपीज, ये रुपीज का कॉलम है, ये अमाउंट, ये ईयर्स, ये रुपीज, ईयर्स इनटू दिस फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज फिक्स्ड एवरी ईयर। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन आपका फिक्स होता है। फॉर द फर्स्ट ईयर में आपका 8000 है, सेकंड ईयर में आपका 8000 रुपये आएगा, थर्ड ईयर में आपका 8000 रुपये आएगा, फोर्थ ईयर में आपका 8000। यानी अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन वी सी दैट इज द पॉइंट वी टेकन द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। अपने कैलकुलेशंस करते हैं, एग्जांपल आप लेंगे तो एग्जांपल आपको समझ में आ गया हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से किस तरह कैलकुलेट किया जाए विद द स्मॉल एग्जांपल ऑफ डिप्रिसिएशन। The original cost of assets, for example, we see taking the amount of, for example, original cost of assets is 80,000. 80,000 original cost of assets आपके suppose original cost of assets rupees 80,000, 80,000 रुपए आपकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स है। और उसके बाद में आपको दिया गया सपोज द depreciation charge 10% per annum. The depreciation is to be charged. Depreciation is to be charged 10% per annum. Per annum means वार्षिक. P for per, A for annum. Per annum यानी वार्षिक, यानी हर साल का वार्षिक, पर ईयर उसे कहते हैं पर ईयर, ईयरली, अनदर वर्ड फॉर ईयरली, पर एनम इज ईयरली। वी शुड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एवरी ईयर। फॉर द फर्स्ट ईयर आपका है, पहला साल आपका है, फर्स्ट ईयर वी शुड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन करते हैं। सपोज फर्स्ट ईयर आपका है, ये आपका फर्स्ट ईयर 80,000 इंटू 10% डिवाइड 100, 80,000 आपका है पर ईयर का। 80,000 आपने कैलकुलेट किया,
डिप्रिशिएशन आप कैलकुलेट कर दें 80,000 एट द एंड ऑफ द ईयर फर्स्ट ईयर, WDV से आप कैलकुलेट कर रहे हैं डिप्रिशिएशन कितना आता है, ये 2 जीरो कट हो गए, 800 इंटू 10 8,000, ये आपका आ गया डिप्रिशिएशन फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर सेम 80,000 आपको डिप्रिशिएशन आपको कैलकुलेट करना है, 80,000 माइनस 8,000 आपका डिप्रिशिएशन माइनस डिप्रिशिएशन 8,000 कितना आ गया 72,000, ये आपका बैलेंस है, आपका बैलेंस है अमाउंट रुपीज इन 42,000 क्या आपका है, ये बैलेंस आपका है 42,000, दैट इज अमाउंट बैलेंस आपका है, ओपनिंग बैलेंस उसे कहते हैं उसे, ये क्या आ गया आपका ओपनिंग बैलेंस, ये आपका क्या आ गया ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस आपका है। सेकंड ईयर 80,000, सेकंड ईयर का आपका जो बैलेंस आपका है, बैलेंस कितना है आपका सेकंड ईयर का 72,000 है, 8,000 पर ईयर से आप कैलकुलेट करेंगे, सेकंड ईयर में भी आपको डिप्रिशिएशन कितना आपका बैलेंस आपका 72,000 में से ये रुपीज आपका कितना आएगा 72,000, सेकंड ईयर में आपका बैलेंस आपका आएगा 70,000, रेट ऑफ डिप्रिशिएशन कितना आपका 8,000, 70,000 में से 8,000 माइनस कितना रहता है अभी 72 में से 8 माइनस करो, 72 माइनस 8 64,000, ये क्या आएगा आपका बैलेंस आएगा आपका, ये बैलेंस जो आपका ओपनिंग बैलेंस आपका आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा। थर्ड ईयर को आप क्या करेंगे, ये 64,000 रुपीज 64,000 माइनस रेट ऑफ डिप्रिशिएशन 8,000 इसको 64 में से 8 गया कितना रहता है आपका बैलेंस, 64 में से 8 गया बैलेंस कितना रहता है 64 माइनस 8 56,000, यह आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस, ये आपका ओपनिंग बैलेंस। अगेन फोर्थ बैलेंस कितना आपका ₹56,000 माइनस 8,000, ये रेट ऑफ डिप्रिशिएशन, ये क्या का डिप्रिशिएशन आपका है फिक्स फॉर एवरी ईयर 8,000 माइनस करो 56 में 8 गए 48,000, ये आपका क्या है बैलेंस। एंड इनटू दिस फर्स्ट मेथड, फर्स्ट ईयर का कितना आएगा आपका 8,000, सेकंड ईयर का कितना आएगा डिप्रिशिएशन 8,000, थर्ड ईयर का कितना आएगा आपका 8,000, फोर्थ ईयर का कितना आपका डिप्रिशिएशन 8,000। We see into this, we should draw the line into this 8,000 फर्स्ट ईयर का, सेकंड का 8,000 आपका है, थर्ड का 8,000 आपका है, फोर्थ का ये रुपीज आपका 8,000 फिक्स फॉर एवरी ईयर, हर साल आपका फिर क्या हो रहा है पॉइंट आपके फिक्स आ रहे हैं 8,000, ये क्या आपका रेट ऑफ डिप्रिशिएशन, ये आपका डिप्रिशिएशन कितना आपका 8,000 आपका है पर ईयर का, दैट इज 8,000 डिप्रिशिएशन पर ईयर, ये डिप्रिशिएशन आपका 8,000 डिप्रिशिएशन रेट ऑफ डिप्रिशिएशन कितना आपका 8,000 आपका रुपीज 8,000 फिक्स आपका 8,000 वी शुड ड्रॉ द लाइन ऑफ दिस डॉट, इस डॉट के आप जो लाइन ड्रॉ करते हैं इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, इट इज कॉल्ड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, दैट इज द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इज कांस्टेंट एवरी ईयर। 8,000 जो रेट ऑफ डिप्रिशिएशन आपका है 8,000 यहाँ पर आया आपका 8,000 second, third year, 8,000 fourth year. The rate of depreciation every year are constant. That is called SLM method. ये आपका कर्व, ये कर्व आपका स्ट्रेंथ आपका है, इसी से कर्व जो आपका है इस कर्व इज अवर पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू कर्व पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस जो आपका ये x एक्सिस आपका है, इस x अक्ष को क्या है पैरेलल, द कर्व पैरेलल समांतर है वो एक्स अक्ष को क्या होता है समांतर, इसलिए उसे कहा जाता है ओरिजिनल कॉस्ट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक एक्सिस क्या हो पैरेलल है। इनटू दिस एग्जांपल ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट आपके सपोज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, original cost of assets is 80,000 and the rate of depreciation is 10% per annum. 10% per annum आपका rate of depreciation support. How to calculate the amount of depreciation in these situations? And reducing balance method. Reducing balance method में आप calculate करेंगे 80,000 into 10% divided by 100 तो कितना आएगा 8,000
डिप्रिसिएशन पर ईयर। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना आएगा 8,000 आपका डिप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर में, आपका कांस्टेंट आपका रहेगा 8,000। ये आपका फर्स्ट ईयर का, आपका फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना आएगा आपका, फर्स्ट ईयर आपका जो आपका फर्स्ट ईयर है 80,000 में से आप क्या करेंगे 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 70,000। यानी पहला जो आपका कैलकुलेशन है फर्स्ट मेथड से और सेकंड मेथड का फर्स्ट मेथड से आपका कैलकुलेशन 70,000 आपका बैलेंस आएगा। दैट इज आवर ओपनिंग बैलेंस। ये आपका क्या आएगा ओपनिंग बैलेंस है। इस ओपनिंग बैलेंस को आप सेकंड ईयर जब ईयर हम लेंगे ये अमाउंट जो आपका है 70,000, इस 72,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कैलकुलेशन आपका रहता है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर 72,000 इंटू 10%, इसके ऊपर आपको 10% निकालना है। 72,000 इंटू 10% डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% डिवाइड बाय 100 तो कितना आता है आपका 7,200। ये 7,200 रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपका है। तो 72,000 माइनस ये डिप्रिसिएशन आपको माइनस करना है 7,200, ये माइनस करो 72,000 7,200 आपका पर ईयर आपका डिमिनिश बैलेंस मेथड के ऊपर आप कैलकुलेट करना है। 7,200 माइनस करने के बाद कितना आता है आपका 64,800, 64,800 आपका आएगा। ये अमाउंट आपका रुपीज आपका आएगा। देन थर्ड ईयर सेम 68,000, ये 68,000 के ऊपर आपको 10% निकालना है। 64,800 इंटू 10% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइड बाय 100 तो कितना आता है आपका ये 6,480। ये आपका आएगा डिप्रिसिएशन 6,480 आपका डिप्रिसिएशन आपका आएगा। ये माइनस करो 64,800 में से आपको अमाउंट में से माइनस करना है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 6,480 माइनस करो 64,800 में से 6,480 कितना रहता है डिप्रिसिएशन आपका 18,320। 58,320 रुपीज आपका रहता है। इसके बाद आपका फोर्थ ईयर स्टार्ट होता है। ईयर फोर्थ ईयर का आपका बैलेंस आपका है बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 58,320। इसके ऊपर 10% डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय 100 ये कितना आता है आपका 5,832 5,832। ये आपका है डिप्रिसिएशन। एक्चुअल अमाउंट कितना आपका 58,320 में से माइनस करो 5,832 3,582 18,320 में से 5,832 माइनस करो कितना आता है आपका 52,480 है। ये आपका अमाउंट ऑफ रुपीज आपका आता है। ये आपका बैलेंस आता है। ये आपका बैलेंस है आपका ये बैलेंस आपका है। ये बैलेंस ये रुपीज आपका है। एंड इनटू दिस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वी सी फर्स्ट ईयर का कितना आएगा 72,000 आपका है। सपोज ये आपका कैलकुलेशन आपका यहाँ पे कैलकुलेशन आपका आ रहा है तो टोटल कितना आएगा आपका वो आपको देखिए कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन कितना होगा 8,000 आया। ये फर्स्ट ईयर में आपका 8,000 यहाँ पे 8,000 को आप डॉट करेंगे ये 8,000 आपका। सेकंड ईयर में कितना है आपको 7,200 ये 7,200 यहाँ पर आएगा 6,000 और 8,000 के बीच में 7,200 ये सेकंड का 7,200 यहाँ पर ये हुआ। फोर्थ का यहाँ पर 7,200 आया डिप्रिसिएशन। इसका कितना है 6,840 या 7,200 ये पहले 8,000 एक फर्स्ट ईयर का 8,000 है सेकंड ईयर का 7,200 फर्स्ट ईयर का कितना आपका 8,000 यहाँ पे राइट डाउन करेंगे अमाउंट। थर्ड ईयर का कितना आपका 6,480 और बाद में फिर फोर्थ ईयर का कितना आएगा आपका 5,832 फोर्थ ईयर का आपका 5,832 ये फोर्थ ईयर का आपका है 5,832। पहले साल का कितना आएगा आपका 8,000 ये आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पहला 8,000 पहले कितना आएगा आपका 8,000 पहले का 8,000 आपका पहले का कितना आएगा आपका 8,000 सेकंड का कितना आएगा 7,200 ये आपने डॉट लिए। फोर्थ का 6,480 फिफ्थ का 5,832 ये आपकी डॉट आई है ये साल के। इसको आप जोड़ते हैं डॉट को ये डॉट को आप जोड़ते हैं दैट इज स्लोपिंग कर्व आपका आता है। इट इज कर्व ये इसे क्या बोलते हैं कर्व। ये आपका वक्र आता है कर्व। इसका कर्व जो होता है डिमिनिशिंग बैलेंस का कर्व डाउन लेफ्ट टू राइट कर्व डाउन ये डाउन कहां होता है लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर कर्व डाउन लेफ्ट टू राइट कर्व डाउन लेफ्ट टू राइट इनटू दिस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कर्व डाउन लेफ्ट टू राइट इनटू दिस मेथड द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस को पैरेलल होता है
ये डाउन होता है कर्व इनटू दिस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कर्व डाउन होता है और स्ट्रेट लाइन मेथड में कर्व आपका स्ट्रेट होता है। यहाँ पे आपका फिक्स होता है 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, दैट इज द डिप्रिसिएशन। ये आपका डिप्रिसिएशन आर फिक्स फॉर एवरी ईयर। ये आपका डिप्रिसिएशन 8,000, 8,000, 8,000, 8,000 विच इज द पैरेलल लाइन। ये ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल में आपका एसएलएम मेथड से द कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस को आपका पैरेलल रहता है। तो ये जो कर्व होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का डाउन टू लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डाउन होता है। तो इनटू दिस फर्स्ट मेथड वी सी द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज फिक्स फॉर एवरी ईयर and diminishing balance method the rate of depreciation we calculate the balancing method। बैलेंस जो आता है उस बैलेंस के ऊपर आपको रेट ऑफ, जो बैलेंस आपका है 72,000 उसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आएगा आपका बैलेंस कितना आएगा 64,800, इसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ये आपका बैलेंसिंग अमाउंट है, ये आपका बैलेंस अमाउंट है, ओपनिंग बैलेंस अमाउंट, ये बैलेंस अमाउंट, ये आपका क्या है, बैलेंस अमाउंट है। इसलिए इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहा जाता है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहा जाता है या रिटर्न डाउन वैल्यूएशन मेथड। ये बैलेंस के ऊपर ये मेथड, ये बैलेंस आपका है 70,000, ये आपका बैलेंस आपका है 64,800, ये आपका बैलेंस है 58,320 और इसका बैलेंस है आपका 52,480। इनटू दिस मेथड बैलेंसिंग के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। इस मेथड में आपको डायरेक्ट 1 ईयर का आपने जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया फर्स्ट 10% से वो कांस्टेंट फॉर एवरी ईयर, इसे कहा जाता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। पहले मेथड को 3 नेम है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सेकंड मेथड को अनदर 3 नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यूएशन। तो क्वेश्चन जो आपको आता है प्रॉब्लम डिप्रिसिएशन का, उसमें जो कैलकुलेशन आपको दिया था इसमें से 3 में से एक नाम आपको एग्जाम में दिया था, कैलकुलेट डिप्रिसिएशन या ऑफ द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट से कैलकुलेट करो कहा जाता है या एसएलएम से कैलकुलेट किया जाता करो, ऐसा कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड से या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। तीनों में से एक नाम आपको क्वेश्चन पेपर में आता है। सो व्हेन यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन वी आइडेंटिफाई द मेथड फर्स्ट। जब आप प्रॉब्लम रीड करते हैं डिप्रिसिएशन का तो कौन सी मेथड से आपको कैलकुलेशन करना है वो पहले आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में कैलकुलेशन करना है। फिक्स मेथड से कैलकुलेट करना है या सेकंड मेथड आपको आएगी, वो मेथड पहले आइडेंटिफाई करो, उसके बाद में 3 या 4 इयर्स का ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन आपको होता है डिप्रिसिएशन का। हार्डली 5 इयर्स लास्ट आपके होते हैं कैलकुलेशन के, 5 ईयर तक आपको डिप्रिसिएशन अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। पहले मेथड से रहता तो फिक्स रहता है आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, सेकंड मेथड से रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपका बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है डिप्रिसिएशन। इसलिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कहा गया या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कहा गया, रिटर्न डाउन वैल्यूएशन मेथड से कहा गया। We identify the first method when you calculate the amount of depreciation into problem। प्रॉब्लम में जब कैलकुलेट करते तो कौन से मेथड से आपको कैलकुलेट करना है वो पहले रीड करना है, उसके बाद में प्रॉब्लम आपको स्टार्ट करना है। स्टूडेंट रुकते हैं यहाँ पर। यह था आपका स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, दिस प्रिस्क्राइब इन आवर 11th कॉलम सिलेबस। 11th कॉलम सिलेबस में आपको ये 2 मेथड के ऊपर ही प्रॉब्लम आपको आने वाले हैं। इस आस्किंग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 12 मार्क के लिए क्वेश्चन, इट इज कंपल्सरी क्वेश्चन है, इसको और नहीं होता है। 12 मार्क्स के लिए L1 पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपका डिप्रिसिएशन का है, इसको और टॉपिक नहीं है, ये कंपल्सरी आपको सॉल्व करना ही करना है। इसलिए दोनों में से एक मेथड आपको एग्जाम में आती है, पहले मेथड से कैलकुलेट करो या दूसरे मेथड से। पहली मेथड कौन सी आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से आइडेंटिफाई किया था। सेकंड मेथड आपकी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यूएशन मेथड। ये दोनों में से एक मेथड से आपको कैलकुलेशन करना है 12 मार्क का। तो ये था आपका पार्ट सेकंड, मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन, नियर बाय 10 मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन वी डिस्कस नाउ, डिस्क्राइब इनटू दिस पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में आपने पूरे डिटेल्स में देखे कि एन्युटी मेथड क्या होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड क्या होती है, मशीन और रेट मेथड क्या होती है, डिप्लीशन मेथड क्या होती है, सिंकिंग फंड मेथड क्या होता है और कंपोनेंट इंटरेस्ट मेथड क्या होती है। वी सी इन शॉर्ट इनटू दिस पार्ट सेकंड, बट 2 मेथड्स आर मोस्ट नेसेसरी, मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड इन आवर 11th कॉमर्स सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 6 में खाली 2 मेथड्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम आते हैं, उसमें से एक मेथड आपको एग्जाम में पूछने वाले, फर्स्ट मेथड से कैलकुलेशन करो या सेकंड मेथड से। तो विच मीन्स नो हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इन फर्स्ट मेथड इज अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फिक्स इन फर्स्ट मेथड एवरी ईयर, एंड सेकंड मेथड द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चेंजेस इन बैलेंसिंग अमाउंट एवरी ईयर। बैलेंसिंग के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके वो चेंजेस अभी करना पड़ता है। स्टूडेंट लिखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 ये चैप्टर का, ये चैप्टर नंबर 7 है आपका। टेक्स्ट बुक सामने रखिए,
कल इसका डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। पहले मेथड से कैलकुलेट करना है, सेकंड मेथड से, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से हाउ टू कैलकुलेट एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दोनों मेथड के प्रॉब्लम आपको दिए हुए टेक्स्ट बुक के अंदर, वो दोनों जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो पूरे डिटेल्स में आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट, ये था आपका डिप्रिसिएशन का सेकंड पार्ट, मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशंस। वी सी नियर 10 मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशंस, ओनली 2 मेथड्स आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशंस। 10 मेथड्स आपको मालूम होना चाहिए उसके नेम, मगर 2 मेथड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।